ओके क्या डिस्कस किया था बेटा लास्ट लेक्चर में हमने? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, ओके, हाँ बराबर। याद है कॉन्सेप्ट इनिशियल फेज कैसे डिस्कस किया था? Sir, on Saturday we have a test, right? Yeah, correct. So about that, sir, exam ends like they got postponed and they end at on Saturday. Okay, it is ending on Saturday. Yeah. Okay. So, Sunday, is it available for everyone? Yes, Sunday. Sunday. What time, sir? In afternoon? We don't have class? No, we'll have the class in the evening from 4 to 6. So around 1 to 2 p.m. Will it work? Sir, I have a class till 1:30. 1:30, yeah? Okay, fine. So from 2:30 to 3:30. Can it be after class? Okay, fine, we'll do. So is it okay if we have test from 6:30 to 7:30 after the lecture? Yeah. Okay. Yeah. Okay for everyone? सबको सही है? Yes, sir. Sir, Sunday. हाँ, या Sunday. Okay, sir. Vedans? Yeah, sir. It's okay from 6:30 to 7:30 on Sunday. For what, sir? The class, right? After the class will end at 6 p.m. na? Yeah, yeah. We'll have a gap. 6:30 to 7:30 for the test, right? Yeah, correct. Okay, that should be okay, sir. Fine. So we'll have the test on Sunday from 6:30 to 7:30. I'll update that on group also. Fine. Last lecture में we were doing regarding initial phase, है ना? Initial phase के बारे में हम discuss कर रहे थे. हाँ, one more thing. The DPP 14 which I have uploaded on Classroom is previous year NEET question. So go very slow. Due date के बाद भी करोगे submit 1-2 दिन के बाद तो भी चलेगा. लेकिन my suggestion will be कि don't see the solution from anywhere और खुद से करिए सब लोग, right? And one more thing बेटा, solve the question neatly, अच्छे से solve करो क्योंकि बहुत abrupt way में solve करते हो आप लोग, few of the students. So solve in a proper sequence and आराम से करिए, right? I guess 17-18 questions I have uploaded. ठीक. So initial phase के बारे में हम लोग discuss कर रहे थे last lecture में. मुझे बताओ बेटा initial phase क्या बताता है आप मुझे हमें? If I'll talk about initial phase. So the initial position of particle in the initial direction of motion. Correct. So initial phase gives us two information. The first information हमें देता है कि particle initially कहाँ पे था और initial position से particle किस direction में move कर रहा है. Right? So initial phase gives us two very critical information. बहुत critical information देता है. पहला, this gives us the information regarding initial position of particle कि भाई particle का initial position क्या है. And number two, initial direction of motion. Initial direction of motion. Is it clear, everyone? Just hold on for a minute. Okay, so initial phase हमें दो बात बताता है. It gives us two information and very critical information कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या है और पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ये दो इंफॉर्मेशन हमें इनिशियल फेज देता है, राइट? फॉर दैट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और आपको ये फेजर डायग्राम से करना है. एंड आफ्टर दैट विल गो विदाउट फेजर ना. राइट नाउ वी विल डू विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम.
मान लो ऐसा हमारा पार्टिकल है and this is my extreme amplitude, this is my negative extreme amplitude, ये हमारा मिड पॉइंट है and the particle, assume करो यहाँ पे है, it's √3a/2 पे, और पार्टिकल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है फ्रॉम √3a/2, राइट? You have to find the initial phase of particle. Find initial phase of particle. Go ahead with the calculation. Sir, we have already done this question. We have done with Yes. this. Okay, Yeah. fine. So I'll change it. So assume कर लो कि particle is here √3a/2 and particle is going in this direction. √3a/2 पे है और पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है. So आपको इनिशियल फेज बताना है पार्टिकल का. कैलकुलेट कर लो एक बार इसका इनिशियल फेज. जस्ट अ सेकंड बेटा, आई एम हैविंग एन अर्जेंट कॉल. वन सेकंड. दिस समझ में आ रहा है कैसे डील करेंगे इसको? हाँ सर. ओके, डू इट. Find the initial phase. ओके, चलिए विल प्लॉट दिस इन अ फेजर डायग्राम. हम इसको फेजर डायग्राम में प्लॉट करते हैं, राइट? सो विल डू इट इन अ फेजर डायग्राम.
यस सॉरी गाइस, ठीक है। कहां पे आएगा इसका प्रोजेक्शन इफ विल डू, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा इसका प्रोजेक्शन? Third. Third. Third quadrant. Okay, fine. So it will come in third quadrant A, and this is what root 3a by 2. Superb. So it will be coming here. यहाँ पे आएगा। और अगर आप इसका प्रोजेक्शन ले लोगे फॉर कैलकुलेटिंग द फेज, सो ये डिस्टेंस आपका रूट 3a by 2 आ गया। नाउ इफ इट इज रूट 3a by 2 एंड दिस इज ये मेरा a है, लेट्स से कि ये एंगल मेरा थीटा है जो मुझे कैलकुलेट करना है। दिस इज O A and B। सो अगर मैं ये ट्रायंगल OAB में देखूं, इन ट्रायंगल OAB, इफ आई विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन दिस ट्रायंगल, सो cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू OB बाय OA होगा? Yes. Cos theta will be equal to OB by OA, implies that cos theta, OB here what we are having is root 3a by 2 over OA is a here, so this will get cancelled, and therefore cos theta will be equal to root 3 by 2. Okay? Now if beta cos theta, if we are having root 3 by 2, then what will be theta in this case? Cos theta, if it is root 3 by 2, theta कितना होगा? Pi by 6. Pi by 6. Super. So this is pi by 6, and as we have discussed in the previous lecture कि जो हम फेज मेजर करेंगे वो यहां से ये मेरा टोटल फेज होगा। सो दिस एंगल विल बी हाउ मच? ये जो ब्लैक कलर से मेजर कर रहा हूं मैं, ये एंगल कितना होगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू पाई 180 डिग्री? नाउ इफ इट इज पाई and we want to get this angle phi, which is initial phase, so phi can be written as pi plus pi by 6, implies कि जो मेरा initial phase होगा will it be equal to 7 pi by 6? होगा ये initial phase 7 pi by 6? शुभम, विषय आया था बेटा ये initial phase इसको? हाँ sir. Okay. Naisha, have you got the better initial phase? So, but theta is 30 degrees. Yeah, theta is 30 degree. This is 30 degree actually. So 30 degree. No, if it is 30 degree, na, convert first 30 degree into radians. So can I say that 30 degree is equal to pi by 6 radian? So this will be? Sir, the angle which you added to pi, that should be pi by 3 then. No, beta, it's 30 degree now. So 30 degree means pi by 6, na? 180 by 6, that will give us 30 degree, right? So 30 is pi by 6, and this total angle from here to here is 180 degree. So 180 degree का मतलब हो गया, that is pi radians. So pi radian, अच्छा, one more thing, sorry. Yes, you are saying right. गलत ऐड किया है हमने. We have to add this ना, phase मेरा यहीं तक है ना. Superb, nice, very good. This is my initial phase actually from here to here, ये वाला. So if it is pi by 360, 30 degree, तो ये angle कितना हो जाएगा? Will it be equal to pi by 3? So मेरा initial phase will be equal to phi, and that is equal to pi plus pi by 3. Initial phase will be equal to pi plus pi by 3. So initial phase will be equal to what? 4 pi by 3. Good, super. समझ में आ गया? What is the error we have done? क्लियर? हमने ये एंगल को मेजर ऐड कर दिया था. दिस एंगल इज पाई बाय 6 ना, लेकिन स्लो इनिशियल फेज के लिए तो मुझे ये एंगल चाहिए. सो दिस एंगल विल बी पाई बाय, ये मेरा 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा. 60 डिग्री का मतलब पाई बाय 3, एंड दिस इज पाई. सो द टोटल एंगल विल बी पाई प्लस पाई बाय 3, इंप्लाइज 4 पाई बाय 3. ऋषय, शुभम, क्लियर है सबको ये पॉइंट? सर हमें डिग्रीज में फाइंड करना है कि रेडियन में? रेडियन में. मैंने पहले ही बताया था, अगर आप एंगल को साइन या कॉस के साथ लिखोगे, देयर वी कैन राइट इन डिग्रीज. लेकिन अगर आपका एंगल इंडिपेंडेंट लिखा है, आपने इंडिपेंडेंट लिखा है, सो देयर इट यू हैव टू राइट इट कंपल्सरी इन रेडियंस. कंपल्सरी आपको उसको रेडियन के में लिखना पड़ेगा. ओके सर. नाइस सर, समझा बेटा अभी पॉइंट? Yes. ओके, ग्रेट, सुपर. अब मैं इसी चीज को कर रहा हूं, बट नाउ वी आर डूइंग इट विदाउट यूजिंग फेजर डायग्राम, है ना? समझना सब लोग. कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल फेज विदाउट यूजिंग फेजर डायग्राम. कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल फेज without using
यूजिंग फेजर डायग्राम, है ना। हम फेजर डायग्राम को यूज नहीं करते हैं, बगैर फेजर डायग्राम यूज किए हुए हम इनिशियल फेज का कैलकुलेशन करते हैं। आई गो बाय सिंपल प्रॉब्लम ओनली, एक सिंपल से क्वेश्चन से जाते हैं। मान लो आपका ये मिड पॉइंट है एंड दिस इज माय एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट और ये मेरा नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट है -a। एज्यूम कर लो बेटा कि पार्टिकल a/2 पे है और इधर जा रहा है t = 0। सो क्या इस केस में x0 जो मेरा होगा विल इट बी इक्वल टू a/2, है ना। और आपको ऑलरेडी मालूम है कि इनिशियल फेज इज phi sin phi एंड sin phi इज इक्वल टू x0/a। याद है डेरिवेशन के वक्त में हमने किया था, या phi इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x0/a। सो sin phi कैन बी सेड x0/a। शुभम याद है रिलेशन हमने डिस्कस किया था, इनिशियल फेज phi इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x0/a, और दिस कैन बी रिटन एज कि sin phi इज इक्वल टू x0/a। Maisa, can we say this better? Sin phi is equal to x0/a. Yeah, sir. Okay. Now x0 here is a/2. अच्छे से समझना, I'll go very slow. x0 यहाँ पे a/2 है. So अगर आप x0 की जगह पे a/2 यहाँ प्लेस कर दोगे, so what will be having? Sin phi is equal to a/2 over a. This will get cancelled. Implies sin phi will be equal to 1/2. Sin phi will be equal to 1/2. अब जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं साइन का, बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री यानी 2 पाई तक प्लॉट करेंगे, बस सिर्फ यहीं तक प्लॉट करना हमें, क्योंकि मुझे पता है एक्स का रिलेशन साइन के साथ चलता है। इक्वेशन याद है ना, एक्स का पोजीशन का जो रिलेशन था, एक्स इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये रिलेशन चलता है, साइन का ग्राफ चलता है। अब मुझे एक बात बताओ, साइन फाई 1/2 है, 0 से लेकर 2 पाई में कितनी बार ये पॉसिबल है? 1/2 फ्रॉम 0 to 2 पाई कितनी बार पॉसिबल है 1/2 होना? हाँ शुभम, 0 से लेकर 2 पाई तक बेटा, फ्रॉम 0 डिग्री टू 2 पाई रेडियंस 360 डिग्री तक साइन थीटा का वैल्यू प्लस 1/2 होना कितनी बार पॉसिबल है? एक बार कि 2 बार? एक बार। 3 बार? वैसे कितनी बार पॉसिबल है बेटा साइन फाई 1/2 होना फ्रॉम 0 to 2 पाई? देखो ये मेरा, हाँ देखो समझना ध्यान से, ये जो मेरा लाइन प्लॉट किया मैंने, ये मेरा लाइन 1/2 का है। वी नो कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। सो दिस इज द लाइन ऑफ 1/2। आप देखो एक बार यहाँ पे पॉसिबल है और एक बार यहाँ पे पॉसिबल है। इज इट 2 टाइम्स? Yes. Is it 2 times? So if sin phi is 1/2, so between 0 degree to 2 pi radian, between 0 radian to 2 pi radian, sin phi will be equal to 1/2 is possible 2 times, one here and one here, right? ये एंगल कितना होता है? What is this angle? pi/2। ये एंगल पाई, ये कितना होता है बेटा? 3 pi/2। और ये एंगल कितना होता है? Is it 2 pi? याद है सबको ग्राफ की? भूल गया सब लोग? ओके ग्रेट, सुपर। सो एक बार आप देखो, एक बार साइन फाई 1/2 होना पॉसिबल है बिटवीन 0 to pi/2। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट? फर्स्ट। और दूसरी बार ये 1/2 होना कहाँ पॉसिबल है? सेकंड क्वाड्रेंट। लॉजिकल बात है, क्योंकि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव। सो ये देखो नेगेटिव 30 और 120 डिग्री पर। यस। अब मुझे ये पता करना है कि साइन फाई इफ आई एम गेटिंग 1/2, तो मुझे 30 लेना है कि 120 लेना है? क्योंकि दोनों तो है ना। 0 से 2 पाई के बीच में तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। इट कैन बी 30 डिग्री ऑल्सो एंड इट कैन बी 120 डिग्री ऑल्सो। लेकिन मुझे कौन सा लेना है? मुझे 30 डिग्री लेना सही रहेगा या 120 लेना सही रहेगा? राइट। अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये मिड पॉइंट के कौन से तरफ है? हाँ, मिड पॉइंट के कौन से तरफ है? नहीं बेटा, मिड पॉइंट की तरफ होगा तो वो चेंज हो जाएगा। नहीं, अगर लेफ्ट में होएगा तो फिर 120 लेंगे और राइट में होएगा तो 30 लेंगे ना। यस। अगर ध्यान से समझो,
आपको यहाँ पे जो वैल्यू लेना है बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लेना है, ये डिसाइड करेगा कि वो किधर की तरफ जा रहा है a/2 से. What is the direction of motion of that particle from a/2? Right? Whether I should go with the solution of the first quadrant or I should go with the solution of the second quadrant will be decided by the direction of velocity. वो velocity का direction decide करेगा. कैसे decide करेगा आप समझिए. Velocity क्या होता है? If you remember the equation, a omega cos omega t plus phi होता है क्या relation velocity का for SHM? हाँ या ना? इसका मतलब अगर आप वेलोसिटी का ग्राफ बनाओगे टाइम के साथ में, तो क्या ये वेलोसिटी का ग्राफ कोसाइन ग्राफ होगा, कॉस थीटा का ग्राफ होगा. एंड इफ यू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा. अरे होता है या नहीं? दिस इज माई पाई बाई 2, दिस बिकम्स माई पाई, ये मेरा होता है 3 पाई बाई 2 एंड दिस बिकम्स माई 2 पाई. Am I clear everyone? यही होता है ना cos थीटा का ग्राफ. वेदांश, yes or no? Yeah, sir. Okay. अब ये सब कॉन्सेप्ट उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसने पहले का लेक्चर ढंग से समझा हुआ है, वरना सब उड़ेगा. और मैं थोड़ा टफ लेवल पे जाऊंगा. मुझे बताओ, इज इट द ग्राफ ऑफ कॉस? और मुझे ये भी मालूम है कि वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो कॉस का ग्राफ होता है. तो क्या ऐसा ही ग्राफ बनेगा वेलोसिटी का? जिसे नाइसा, yes or no? ओके. नाउ यू टेल मी बेटा, इस केस में जो मेरा वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इस केस में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस केस में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नेगेटिव डायरेक्शन है? डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का? इज इट पॉजिटिव डायरेक्शन कि नेगेटिव डायरेक्शन? अरे इधर की तरफ जा रहा है ना पार्टिकल. सो अगर पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है. राइट? अब मुझे बताओ, अगर मैं कॉस के ग्राफ से देखूं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां पे पॉजिटिव हो सकता है? इट कैन बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट कैन बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. क्या सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव है क्योंकि वी कॉस का ग्राफ नीचे चल रहा है? हाँ या ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, और अगर कॉस पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. Whereas in case of second quadrant and third quadrant, cos is negative. ग्राफ में दिख रहा है आपको? ये सबको क्लियर है ना? ये सेकंड क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, और अगर cos नेगेटिव होगा तो क्या वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगा इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट? राइट? यहां पे मुझे वेलोसिटी कैसा चाहिए? पॉजिटिव. और पॉजिटिव वेलोसिटी आपको कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में. लेकिन फोर्थ में तो मैं जा ही नहीं रहा हूं, मैं फर्स्ट में ही आ रहा हूं. तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको कॉमन फैक्टर कहां पे मिल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है. इसका मतलब इस केस में जो आपका फाई होगा वो 30 डिग्री होगा, यानी π/6 रेडियंस होगा. खत्म. रिसेश समझा बेटा क्या बोला मैंने? रिसेश, नाइसा, getting the point what I said? Yeah, sir. Okay, super. Shubham, Vedant, clear with the concept? Yeah, sir. Okay. सबसे पहले आप क्या करोगे? सी, सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले आप फाई निकाल कर रखो. वंस वी हैव कैलकुलेटेड द फाई, अब उसका आपको दो सॉल्यूशन मिल रहा है, 0 से 2 पाई. हम इसी में बात करेंगे फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री. उसके बाहर हम नहीं जाएंगे. तो 0 से लेकर 360 डिग्री में आपको दो सॉल्यूशन मिलेगा. याद करो फेजर में जब हम प्रोजेक्शन लेते थे तो मुझे 2 पॉइंट मिलता था. सो आपको दो सॉल्यूशन मिलेगा. अब दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन ऑप्ट करना है, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एसएचएम. वो एसएचएम के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करेगा. इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव था, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाना पड़ेगा. फोर्थ में हम जा नहीं सकते क्योंकि ये पहला वाला ग्राफ परमिट नहीं कर रहा है. तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही फैक्टर है. So therefore the solution will be in first quadrant. Am I clear, Shubham? Yes, sir. Okay. करो जरा इस पे प्रैक्टिस. मेरा पार्टिकल ये मिड पॉइंट पे है एंड दिस पार्टिकल मिड पॉइंट से मान लो पार्टिकल a/√2 पे है.
और इधर जा रहा है, एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड या नेगेटिव एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड। जरा बताइए इसका इनिशियल फेज क्या होगा? फाइंड इनिशियल फेज। हाँ, करूं मैं इसको? सी, आई विल डू दिस। पहली बात, ये आपका x नॉट है और इनिशियल फेज के लिए हमें ऑलरेडी मालूम है बेटा इंफॉर्मेशन दैट sin phi is equal to x naught by a implies sin phi is equal to a by root 2 by a. This will get cancelled. तो sin phi कितना आ गया हमें? That we are having is 1 by root 2. So अगर मैं sin का ग्राफ प्लॉट करके देखूं, if I'll plot the graph of sin and analyze this, so अगर आप sin का ग्राफ प्लॉट करके एनालाइज करते हो like this, तो आपको 1 by root 2 चाहिए। We want 1 by root 2, right? 1 by root 2 चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, 1 by root 2 फ्रॉम 0 to 2 पाई के बीच में कितनी बार आपको आ रहा है? 2 बार आ रहा है। प्लस 1 by root 2 कितनी बार आ रहा है फ्रॉम 0 to 2 पाई? Am I getting twice? आ रहा है ना बेटा? एक बार तो मुझे यहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है और दूसरी बार मुझे यहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है। सो वन सॉल्यूशन वी आर गेटिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकंड सॉल्यूशन वी आर गेटिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस केस में ये पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। सुपर। इफ द वेलोसिटी इज नेगेटिव इन दिस केस, तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए? कॉस के हिसाब से सोचो। मेरा सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड। व्हाई सेकंड? क्योंकि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है इसका मतलब कॉस नेगेटिव होना चाहिए और कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका मतलब कि कौन सा सॉल्यूशन जस्टिफाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सॉल्यूशन कि सेकंड वाला? सेकंड क्वाड्रेंट। अब 1 by root 2 सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालोगे? पाई माइनस पाई बाई 4। सो फाई कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 3 पाई बाई 4? निशय, शुभम, नाइसा, अंकिता, आया था बेटा आंसर सभी का ये 3 पाई बाई 4? हाँ सर, हाँ। Sir, could you can you explain the later part again? Okay, what I did is, शुभम मुझे एक बात बताओ, ये जो आप एसएचएम देख रहे हो, या एसएचएम देख के तुम मुझे बताओ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इस केस में? इज वेलोसिटी पॉजिटिव कि नेगेटिव? हाँ शुभम, नेगेटिव है पॉजिटिव है? Negative. नेगेटिव, करेक्ट। सो इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव, और आपको पता है कि वेलोसिटी का रिलेशन होता है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है इंप्लाइज कि कॉस नेगेटिव होना चाहिए। Yes. कॉस नेगेटिव होना चाहिए। तो मुझे बता कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है? कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट कि सेकंड? सेकंड। Yes. सेकंड में होता है। इसका मतलब कि जो मेरा इसका करेक्ट सॉल्यूशन होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन सही होगा, फर्स्ट में हम ले नहीं सकते
क्योंकि फर्स्ट में आप तब ले सकते थे जब आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव होता, तब कॉस्ट पॉजिटिव होता, बट हियर वेलोसिटी डायरेक्शन इज नेगेटिव, so since the direction of velocity is negative, therefore cost will be negative, or cost negative is possible in second quadrant among first and second. तो मेरा करेक्ट सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप एंगल कैसे लिखते हो, पाई माइनस थीटा, सो पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज 3 पाई बाय 4। Okay, sir. Thank you. गॉट द पॉइंट? ये एंगल लिखने आता है ना, पाई माइनस थीटा कैसे क्या लिखते हैं हम लोग ये? Yes. ओके, रिसे, नाइसा, वेदांश, हाँ सर। अंकिता, ये लिखने आता है ना इशिता? You know how to write these angles? Yes. Okay, Yes, sir. super, good. Fine. चलो आगे बढ़े, One चले minute, मूव। sir. हाँ I'm करो noting it. करो करो करो। Done. एक और करके मुझे बता दो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। इनिशियल, देखो इनिशियल फेज निकालने के लिए मैंने आपको दो रास्ते सिखाए, एक तो फेजर और एक ये, दोनों में से जो तुम्हें सही लगे वैसे आप करो, बट मेरा सजेशन होगा आप फेजर से करो, क्योंकि एडवांस में फेजर से ही करना रहता है, तो जल्दी बन जाता है एक्चुअली क्वेश्चन। फेजर से कितना भी कॉम्प्लिकेटेड देगा आप आसानी से निकाल पाओगे, सो मेरा सजेशन होगा कि फेजर से करो, तुम्हें जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हो। a माइनस ए पार्टिकल √3a/2 पे है और इधर जा रहा है, राइट? यू हैव टू फाइंड इनिशियल फेज इन दिस केस, फाइंड इनिशियल फेज। करिए जरा इसको सॉल्व। विदाउट यूजिंग फेजर करना, डोंट यूज फेजर हियर। करें इसको सॉल्व। सी, मैं करता हूं, पहले तो इनिशियल फेज के लिए बात करते हैं। So I know कि sin phi is what? x naught by a. This is what is sin phi. So implies
that sin phi x naught will be equal to what beta? Minus of root 3a by 2 over a. This is will get cancelled. So implies sin phi कितना हो जाएगा? Is it equal to minus root 3 by 2? हाँ, So if it is minus root 3 by 2, and we'll go with a plot of that graph of sine, तो sine के ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, and we are interested only between 0 to 2 pi. इसके आगे मुझे बात ही नहीं करना, क्योंकि यहीं तक मेरा काम जनरली एडवांस यहीं तक पूछता है. सो इस इंटरवल के बीच में इफ वी वांट माइनस रूट 3 by 2, क्योंकि माइनस में मुझे चाहिए, सो माइनस रूट 3 by 2, इसका दो सॉल्यूशन पॉसिबल दिख रहा है मुझे. द वन पॉसिबल सॉल्यूशन इज हियर एंड द सेकंड पॉसिबल सॉल्यूशन इज हियर. मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में दो सॉल्यूशन दिख रहे हैं बेटा? इन विच क्वाड्रेंट यू आर सीइंग दिस टू सॉल्यूशंस? एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड, करेक्ट. एक जो आपको पॉसिबल सॉल्यूशन दिख रहा है दैट यू आर सीइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, और अगला पॉसिबल सॉल्यूशन कहाँ दिख रहा है? इसमें. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, अब जरा मुझे बताइए, दो दिख रहा है मुझे रूट 3 by minus रूट 3 by 2, तो इसका दो पॉसिबल सॉल्यूशन है. एक पॉसिबल सॉल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट में है और दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन फोर्थ क्वाड्रेंट में है. मुझे ये डायग्राम देख के बताओ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इस केस में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव. सुपर. राइट साइड में जा रहा है. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है ना बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस केस में क्या है? पॉजिटिव है. अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो क्या इसका मतलब कि कॉस भी पॉजिटिव होगा इस केस में? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव. और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब कि ये जो cos वाला टर्म है ये भी cos भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा. अब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप सोचोगे तो cos पॉजिटिव कहाँ है? थर्ड में पॉजिटिव है कि फोर्थ में पॉजिटिव है? इसी तरह कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है बेटा cos? थर्ड में कि फोर्थ में? नाइसा, इन विच क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है cos? फोर्थ. एक तो क्लियर है ना भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है. यस और नो? ये पता है ना सबको? यस सर. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसिक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, रिमेनिंग सब नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग सारे नेगेटिव. सो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो गया. सो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आप कैसे लिखोगे? फाइव. will it be equal to 2 pi minus theta? So phi will be equal to what? 2 pi. Theta मतलब कितना हो गया इस केस में? रूट 3 by 2 हो गया. So that will be equal to pi by 3. So 2 pi minus 5 by 3. So phi will be equal to what? 6 pi minus pi by 3. So implies कि मेरा जो initial phase होगा will it be equal to 5 pi by 3? इसे इसिता आया था बेटा सबका आंसर ही? Yes, sir. वेरी गुड, सुपर. फाइनल निकाल लिया था 5 pi by 3. हैव यू गॉट दिस? इसिता ये रिजल्ट आ गया था 5 pi by 3. Yes, sir. ग्रेट. शुभम, रिसे, नाइसा, हैव यू गॉट दिस बेटा यहाँ तक? क्या सर रहेगा? गुड, वेरी गुड. अंकिता, ये समझ में आया बेटा? आंसर आया था आपका? हाँ सर. ग्रेट. और कराऊं कि अब सब कमांड हो गया इनिशियल फेज निकालने के लिए? कमांड हो गया इनिशियल फेज पे? हाँ सर वो. ओके गुड. मैदान इनिशियल फेज निकालने के लिए आपके पास दो लॉजिक था, दो से आपको मेथड बताया मैंने टू कैलकुलेट इनिशियल फेज. वन by doing it with the help of a phasor diagram, the other by this way.
जो अप्रोच आपको सही लगे यू कैन गो बाय दैट अप्रोच। ठीक, आगे इसका असाइनमेंट में प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक सबको इनिशियल फेज का कैलकुलेशन? शुभम, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, वेदांश क्लियर है बेटा यहाँ तक पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिख दो, एनर्जी, डिस्कशन ऑन एनर्जी इन एसएचएम। डिस्कशन ऑन एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम का मतलब Simple harmonic motion. सुपर, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, मान लो ये हमारा ऑसिलेशन हो रहा है, दिस इज माय मिड पॉइंट, ये मेरा एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड और ये मेरा नेगेटिव एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये जो मिड पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम है ना? मिड पॉइंट इक्विलिब्रियम है? हाँ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम हियर? इस केस में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? हाँ ऋषि, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा? कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए उसके ऊपर। शुभम, यस और नो? इफ इट इज इक्विलिब्रियम, अच्छा ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है? इज इट स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? मैंने आपको बताया वो ये सारी बातें। इक्विलिब्रियम आर ऑफ 3 टाइप्स, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? Sir, stable because it returns to the यस, center. एक्सीलेंट शुभम, वेरी गुड। मैंने बताया था कि अगर आप अपने उसको इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस करो और डिस्प्लेस करने के बाद अगर वो अपने पोजीशन को रिटेन करता है देन दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर आप डिस्प्लेस कर दो, डिस्प्लेस करने के बाद अगर वो अपने पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाता है तब वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। यस और नो? अब लॉजिकल बात है कि एसएचएम करने के बाद यहां से अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो इसको वापस भी तो आना पड़ेगा। सो एसएचएम ऑलवेज टेक्स प्लेस अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने बात किया था इसके बारे में, है ना? इक्विलिब्रियम बेसिकली 3 टाइप का था, वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, द सेकंड वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर आपने उस ऑब्जेक्ट को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया और स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद इफ इट इज रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर वो अपने पोजीशन को रिगेन कर ले देन दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल। एंड आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट इफ इट मूव्स अवे, अगर वो और दूर चला जाए देन दैट इज अनस्टेबल। और अगर आपने स्लाइट डिस्प्लेसमेंट किया और वो नए पोजीशन पे रुका रहे देन दैट इज न्यूट्रल। इज इट क्लियर? और मुझे ऑलरेडी मालूम है कि एसएचएम जो होता है उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट एसएचएम होता है, हाँ या ना एवरीवन? वेदांश, यस और नो? वी हैव डिस्कस्ड दिस बेटा, पहले पढ़ा है हमने इसके बारे में। Yes, sir. 1 second. नाउ वी टेल मी वन थिंग, ऋषि याद है बेटा ये कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था स्टेबल अनस्टेबल का? हाँ सर, याद है, याद है। मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी? Maximum. मैक्सिमम। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है पार्टिकल का? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये x जो आप डिस्टेंस मेजर करोगे, ये x डिस्टेंस कहां से मेजर्ड होता है? कहां से मेजर करते x को? डू वी मेजर x फ्रॉम द मिड पॉइंट? Yeah. और अगर आप मिड पॉइंट के लिए बात करोगे या एट मिड पॉइंट अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक एट मिड पॉइंट, अगर मैं मिड पॉइंट पे चर्चा करूं तो क्या x का वैल्यू 0 हो जाएगा फॉर मिड पॉइंट? राइट? इफ x is becoming 0 for midpoint, so velocity इस केस में कितना हो जाएगा बेटा? Will it be equal to omega a? होगा। So maximum velocity of particle performing SHM is at midpoint, and that maximum velocity is equal to omega a. Agreed?
Yes. ओके अब मुझे एक बात बताओ, तो इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर इंप्लाइज कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा विल इट बी इक्वल टू हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। क्या ये काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का मैक्सिमम होगा? भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा कितना? विल इट बी इक्वल टू हाफ एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर एंड वी मैक्स आई नो इज ओमेगा ए। तो क्या मेरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होगा? विल इट बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? हाँ बेटा होगा ये, हाँ या ना? यस और नो एवरीवन? विषय शुभम रिस्पॉन्ड करो प्रॉपर्ली, या ज्यादा हाँ टफ सर। मुझे बोलो, मैं गो डाउन। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ सर। ओके थोड़ा टफ है बेटा आई नो, बट आपने उतना पढ़ के रखा है कि इसको आप होल्ड कर पाओगे। टफ लगेगा मुझे बोलो, मैं थोड़ा स्लो चला जाऊंगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? सो हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम will be equal to half into m into omega square into a square. Will it be the maximum kinetic energy? Yes. करेक्ट। अब क्या करें इसको थोड़ा सा अगर और हम एनालाइज कर दे। सो क्या आपको याद है कि ओमेगा स्क्वायर के बाई एम होता है? डू यू रिमेंबर दिस? हमने पहले डिस्कस किया था ना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम होता है, याद है कि सब भूल गया? होता है ना बेटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। हाँ सर, yeah. करेक्ट। अभी आप मुझे बोलो, क्योंकि मुझे थोड़ा टफ है आई एग्री, लेकिन एक बार अगर वो सेट हो जाएगा ना कॉन्सेप्ट, फिर मुझे आप स्मार्ट हो जाओगे। इसमें थोड़ा सा समझना है। ये ओमेगा स्क्वायर का टर्म यहाँ पे प्लेस कर दो, तो कैन आई से बेटा कि जो मेरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा एम के ए। हाँ हाफ इंटू एम के बाय एम इंटू ए स्क्वायर, और ये एम से एम कट कर दिया। सो क्या मेरा यहाँ से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो रहा है इज इट इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर? Yes. दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट? इमेजिन करते हैं, एज्यूम करते हैं कि मिड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। हो भी सकता है हाँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, जिसको हमने डाटम बोला है। अब हर बार डाटम मिड पॉइंट पे ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं कि मिड पॉइंट पे देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। वी आर एज्यूमिंग, है ना? सो हम एज्यूम कर लेते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 फॉर मिड पॉइंट। ध्यान रखना, हालांकि एक बार एडवांस ने पूछा था ऐसा, मतलब जेई मेंस तक तो और नीट तक तो हर बार पोटेंशियल एनर्जी मिड पॉइंट पे 0 ही रहेगा, लेकिन एडवांस ने एक बार उल्टा करके पूछ दिया था। खैर, तो आप ऐसे एज्यूम कर लो, एज्यूम दैट कि पोटेंशियल एनर्जी इज 0 फॉर मिड पॉइंट। हम एज्यूम करके चलते हैं कि मिड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो मैकेनिकल एनर्जी कितना होता है बेटा? इफ यू रिमेंबर, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना भाई? यस और नो? राइट। तो इसका मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी इस केस में कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया मिड पॉइंट पे, और काइनेटिक एनर्जी आपको मिला हुआ है हाफ के ए स्क्वायर। तो क्या जो मेरा मैकेनिकल एनर्जी होगा विल इट बी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर? एम ई स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल एनर्जी। आई होप
ये आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड। नाइसा, समझ रहा है बेटा कि टफ हो गया? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ओके। इशिता, ऋषय, Yes, sir. Yes. वेदांश, अंकिता, समझ में आ Yes, रहा है? sir. ओके। Yes. अब मुझे एक बात बताओ, चलो समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, इस एसएचएम में कोई एक ऐसा फोर्स है क्या जो एनर्जी को वेस्ट कर रहा है? ऐसा कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे? फ्रिक्शन वगैरह कुछ है जो एनर्जी को बर्बाद करेगा? नहीं ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर फ्रिक्शन वगैरह होता तो एनर्जी का वेस्टेज होता। लेकिन मुझे बताओ इस केस में क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है जो एनर्जी को बर्बाद करेगा? नहीं sir, नहीं sir. नहीं लग रहा। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस केस में एक्ट नहीं हो रहा है तो क्या इस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा? यस या नो? हाँ sir, convert रहेगा. कंजर्व्ड रहेगा, लॉजिकल बात है। अब सोच के देखो व्हाट आई एम सेइंग। हालांकि एक्चुअली एसएचएम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, इसलिए धीरे धीरे ऑसिलेट करते 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 आके रुक जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। बट राइट नाउ दिस इज नॉट डैम्पिंग। हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो ऑसिलेट होता रहेगा होता रहेगा। हम एकदम आइडियल केस पढ़ रहे हैं कि ऑसिलेशन विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, ऐसे होते रहेगा ऑसिलेट। लेकिन एक्चुअली डे टू डे लाइफ में ऑसिलेट होता है, होते 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 फाइनली आके वो रुक जाता है। दीज टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। फिलहाल हम डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम आइडियल सिनेरियो बात कर रहे हैं। मुझे बताओ इस केस में क्या एनर्जी को वेस्ट करने वाला, बर्बाद करने वाला कोई एक ऐसा फैक्टर है यहाँ पे? कोई नहीं है, राइट? सो अगर एनर्जी को वेस्ट करने वाला कोई एक ऐसा फैक्टर नहीं है इस केस में, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी पूरे इंटरवल में कंजर्व्ड रहेगा? हाँ, जो मैकेनिकल एनर्जी मिड पॉइंट पे है वही मैकेनिकल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा और हर पॉइंट पे होगा, क्योंकि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस केस। एंड व्हाई एनर्जी इज बीइंग कांस्टेंट? बिकॉज देयर इज नो एनी काइंड ऑफ फोर्स जो एनर्जी को बर्बाद कर रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है इस केस में, सो देयरफॉर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। इज इट क्लियर व्हाट आई सेड? समझ में आया ये पॉइंट? इज इट क्लियर है बेटा व्हाट आई सेड? हाँ सर। ठीक, अब देखिए इस केस में। सो अगर आप एसएचएम के बारे में बात कर रहे हो, इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट एसएचएम, तो मुझे कुछ बड़ा क्रिस्टल हो गया कुछ पॉइंट्स कि भाई मिड पॉइंट पे सिर्फ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर। और मिड पॉइंट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम किया कि देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट। बट हर बार जीरो होगा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। और इस केस में जो यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी होगा, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये यहां तक पॉइंट एग्री कर रहे हैं सब लोग? शुभम, डू यू एग्री विद दिस? ओके, अब एक काम करो, इस पार्टिकल को अब जरा एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके जाते हैं। तो जब आप ये एक्सट्रीम पॉइंट पे आ रहे हो, एक्सट्रीम पॉइंट पे आ रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? व्हाट इज द वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पॉइंट? 0. 0, राइट? सो अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब कि एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? अरे भैया, जब वेलोसिटी ही नहीं है तो काइनेटिक किधर से आएगा? एक्सट्रीम पॉइंट पे इफ देयर इज नो वेलोसिटी इंप्लाइज कि देयर विल बी नो काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट, राइट? लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व था। तो ये जो मिड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी था, वो एक्सट्रीम पॉइंट पे जाने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया? किसमें कन्वर्ट हो गया? ये जो मिड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है, वो एक्सट्रीम पॉइंट पे जाने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व था, पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी अभी भी वही रहेगा, वो चेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तब चेंज करता जब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह ऐसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा होता। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, सो देयरफॉर एनर्जी का वेस्टेज नहीं होगा, सो मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व।
तो जितना मैकेनिकल एनर्जी मिड पॉइंट पे था उतना ही मैकेनिकल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा, वो कंजर्व रहेगा। लेकिन मिड पॉइंट पे वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में था और एक्सट्रीम पॉइंट पे जाने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। Am I clear, everyone? Am I clear, everyone? Okay. अब जरा Sir, चलिए can you wait for 1 minute on the slide? previous slide. No, sir, this one. Okay. लिख लो, I'll just have a water. Done. Okay. So 1 second. हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलिए आगे एनालाइज करते हैं। तो मैंने दो काम कर लिया, आई हैव रिटन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी एट मिड पॉइंट एंड एक्सट्रीम पॉइंट। अब किसी भी रैंडम पॉइंट पे बात करते हैं, एक्स पे, एट एनी पॉइंट एक्स। सो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट के वेलोसिटी के बराबर। so, आपको वेलोसिटी पता है बेटा कितना होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर आप यहाँ का काइनेटिक एनर्जी लिखोगे इस पॉइंट पे तो कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होगा। तो किसी भी रैंडम पोजीशन x पे वेलोसिटी कितना होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड इफ यू वांट टू राइट द काइनेटिक एनर्जी हियर, सो दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, और v मतलब इसका स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, विल इट बी द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, राइट। ओमेगा स्क्वायर को हम वापस से रिप्लेस कर सकते हैं x बाई के बाई एम से। so, अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, विल इट बी इक्वल टू हाफ एम इंटू के बाई एम इंटू ओमेगा स्क्वायर a square minus x square. So this m and m will get cancelled. So therefore kinetic energy कितना आ रहा है, हाफ के ओमेगा, सॉरी ओमेगा बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ओमेगा की जगह पे तो रखा है, हाफ के ब्रैकेट a square minus x square. So is it the kinetic energy at this point, हाफ के a square minus x square? क्या इतना kinetic energy है इस पॉइंट पे? हाँ शुभम, is it the kinetic energy? Yes. Okay. मैकेनिकल एनर्जी वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? So it will remain the same. इट विल रिमेन सेम, यस करेक्ट, क्योंकि उसको चेंज करने वाला कोई फैक्टर है ही नहीं। एंड वी नो दैट मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ मैकेनिकल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर and kinetic energy we are having half k a square minus x square plus potential energy. So if I'll be shifting this side, इसका elongate कर लेते हैं यहाँ पे, half k a square is equal to half k a square minus half k x square plus of potential. So if I'll be shifting this side, so potential energy is half k a square minus half k a square plus half k x square. Now this and this term will get cancelled. So as this term is getting cancelled, so potential energy कितना हो जाएगा बेटा,
Will it be equal to half kx square? Right? Okay, is it clear, everyone? Kishay, nice or done? Yeah, sir. Fine. चलो, we'll plot the graph of the same. इसी का हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे एनर्जी का एक्स के साथ में. लिख लिया सबने? ग्राफ प्लॉटिंग पे चलो. Yes. ओके, सो विल प्लॉट द ग्राफ. देखिए ग्राफ प्लॉटिंग इसका. सो पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअली एक्स स्क्वायर के साथ ग्राफ होगा. पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. सो दिस ग्राफ विल बी will be something like this. ये ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे, so 1 second. Like this. This will be my amplitude. और दोनों एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड्स पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट बोथ द एम्पलीट्यूड्स. यहाँ पे एक्स है और इस एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करते हैं काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी और मैकेनिकल एनर्जी भी. ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ. दिस विल बी द ग्राफ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. And its value will be half k a square. And अगर हम रफली प्लॉट करें इसको, कुछ ऐसा. So this will be the graph of kinetic energy. देखो मिड पॉइंट पे मैक्सिमम है और दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे इट इज 0. So ये जो ग्राफ बना, this is the graph of kinetic energy, and this one is the graph of potential energy, and this one is the graph of mechanical energy. समझा ग्राफ कि मैं अकेला ही समझा? समझ में आया ग्राफ प्रॉपर्ली? देखो, ओके. काइनेटिक एनर्जी का अगर देखोगे आप माइनस एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ होगा. पोटेंशियल एनर्जी का इट्स डायरेक्टली एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी,
and this is the graph of mechanical energy that will remain constant and will be equal to half k square. Is it clear? Shall I move ahead? 1 second, sir. जे एडवांस ने एक पर पूछा था, वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ थोड़ा ऊपर उठा दिया था. उसने अज्यूम किया था कि मिड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, लेकिन आप अभी इतना ही समझो. Having potential energy zero at the midpoint. Yeah, sir, you can go. Done with everyone? Medans, Naisa, Ankita, हो गया बेटा सबका लिख के प्लॉटिंग? Yeah, sir. Okay. क्वेश्चन करो. Starting with a simple question. Find the position of particle. Find position of particle from midpoint where kinetic energy and आसान बनाता हूँ, kinetic energy and potential energy will be same. Implies the magnitude or the value of kinetic energy will be equal to the value of potential energy. So you have to find key at what position from the midpoint they will have same kinetic and same potential. क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा है? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? व्हाट आई हैव आस्क्ड? Yes, sir. Go ahead. चलो करूं मैं? क्या हो रहा है? कैसे अप्रोच करोगे इसको? आपको वो पोजीशन बताना है जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए. राइट? काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन था बेटा? हाफ के into a square minus x square, है ना? This was the formula to calculate the kinetic energy at any position x from the midpoint, and that was equal to half k a square minus x square, right?
And if we are talking about potential energy, so for that the formula was half k into x square. Now question में they are saying that the value of kinetic energy will be exactly equal to the value of potential energy. So if I'll be plugging these values here, so half k a square minus x square, and the potential energy will be equal to half k x square. This half and half will get cancelled. This k and k will get cancelled. Implies a square minus x square will be equal to x square, or we can say that 2x square will be equal to a square. Implies x square will be equal to a square by 2, and therefore x will be equal to plus minus of a by 2. Right? So at x is equal to plus minus of a by root 2 is a position where the particle will have same kinetic energy and same potential energy. Is it clear? So ये ग्राफ में ये जो पॉइंट था ना आपका, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, having same kinetic and same potential, this is minus a by root 2, and here it is plus a by root 2. Am I clear, everyone? Okay, great. बाकी लोगों को समझ में आया? या सर. ग्रेट. आया था आंसर बेटा किसी का? सर मुझे आया था. नहीं करेगा ना आएगा. ग्रेट, वेरी गुड. चले मूव अहेड, आगे बढ़ो. So one second. Done, sir. Okay. Shall I move ahead? आगे बढ़े? Yes. ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं. I'll be going with a simple question. देखिए, पार्टिकल का मास दिया हुआ है 2 kg और इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4 sin 4 sin ऐसा नहीं, इसे करते हैं. सी, यहां तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया एनर्जी का पूरा कैलकुलेशन ढंग से? समझ में आया सभी को? ऋषय, शुभम, इज इट क्लियर? Yes. ओके, चलिए थोड़ा सा भी मॉडिफाई करता हूं क्वेश्चन. मान लो अगर आपसे कुछ ऐसा पूछा जा रहा है कि एक पार्टिकल मिड पॉइंट, ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट, और पार्टिकल मिड पॉइंट से स्टार्ट होकर इधर चल रहा है, राइट? इसका जो यहां से यहां जाके इधर जाने का, वापस आने का ना, तो कंप्लीट टाइम पीरियड इज गिवन कैपिटल टी. सो इसका कंप्लीट टाइम पीरियड दिया है कैपिटल टी. ये इसका टाइम पीरियड है, मतलब टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन. अब पार्टिकल मिड पॉइंट से स्टार्ट किया है और पार्टिकल को यहां पे जाना है a/2 पे पहली बार. सो आपको बताना है कि मिड पॉइंट से स्टार्ट होके a/2 जाने में पार्टिकल को कितना वक्त लगेगा. फाइंड
time taken by particle to move from midpoint to a by 2. Again, this is one of the interesting question. So देखो, particle has started from midpoint. Particle ने midpoint से start किया है, and this particle has to move to a by 2. So what will be the time taken by particle to move from here to here if the complete time period of the oscillation is given as capital T? Right? मैं करता हूं अभी इसको, आपसे नहीं होगा पहली बार. See, this question can be solved by the two approach. इसको हम दो approach से कर सकते हैं. The one by using phasor diagram and one without using phasor diagram. ठीक है? I'll be doing by using phasor diagram first. पहले हम phasor से करते हैं. See here. So अगर मैं इसको roughly phasor diagram पे convert कर दूं, like this. So particle has started moving from midpoint. So particle is moving from here and particle has moved to a by 2. क्योंकि इधर ही जाता रहेगा ना, यहाँ से चलेगा तो इधर ही जाएगा, पहली बार ही पहुंच रहे हैं उसको. So logical बात है, we have to go in the first quadrant. Yes or no? First quadrant में जाना पड़ेगा या नहीं? Because अगर ये यहाँ से जाके return हुआ रहता, then we had gone to this one. But here it is going in this direction only, so we have to go here only. यहाँ पे चलना है आपको. This is known to me is a by 2 और ये आपका a है. So can we get this angle theta? Yeah, let me take this angle as alpha, not theta. So ये angle में alpha ले लेता. What will be alpha here, beta? So cos alpha OAB. So cos alpha will be equal to OB by OA. So can I say from here that cos alpha, will it be equal to a by 2 over a? So this a and a will get cancelled. So from here, cos alpha will be equal to 1 by 2. So if cos alpha is 1 by 2, implies alpha will be equal to what? Will it be equal to pi by 6? होगा alpha pi by 6? Yes or no? So alpha pi by 6 होगा बेटा? Yes. Right? If this is pi by 6 implies 30 degree, then what will be this angle जो उसने move किया है? Will it be equal to pi by 3? 60 degree. Yeah. 60 degree, pi by 3. Now you tell one thing. अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया बेटा, मतलब सर्कुलर में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया होगा, तो उसने कितना एंगल ट्रेवल किया होगा टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर इन सर्कुलर? क्या उसने पाई बाय 3 एंगल मूव किया होगा? हाँ. ओके. अब जैसे आपने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. इन द सेम वे अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को सर्कुलर में कन्वर्ट करूंगा, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लीनियर स्पीड विल गो विथ एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा, और लीनियर डिस्टेंस की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस लिखना पड़ेगा बाय टाइम. सो कैन आई से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी. ये मेरा लीनियर में था. दिस लीनियर आई हैव कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर. तो क्या मैं यहां से कन्वर्ट करने के बाद कैन आई से कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी? Yes, sir. वी हैव डिस्कस दिस. मैंने पहले बताया हुआ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी. यस या नो एवरीवन? Theta is equal to what? Omega into t. So if I'll be placing theta here as omega into t, so can I say कि omega into t will be equal to pi by 3? लिख सकते हैं भाई. Naisa, can we write beta theta is equal to omega into t? Yeah, sir. Okay. Now omega can be written as 2 pi by time period into t is equal to pi by 3. Right? Now this pi and pi will get cancelled. So from here time period कितना आ जाएगा? Will it be equal to t by 6? So अगर आपका ये complete time period t दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ से from mid point to a by 2 जाने में जो time लगेगा, that will be 1/6 of the total time. So total time period का 1/6 time आपको लगेगा to move from mid point to a by 2.
सो मिड पॉइंट से a/2 जाने में टोटल टाइम का 1/6 आपको लगेगा, विच विल बी t/6. इज इट क्लियर? शुभम, इशिता, समझ में आया बेटा कैलकुलेशन ये प्रॉपरली? Yes. शुभम समझा ढंग से? Yes, sir, समझा. गुड. ऋषय, नाइसा, क्लियर है बेटा कैलकुलेशन? सर आपने हाँ हाँ. ओमेगा ओमेगा को 2π/t कैसे लिखा? कैसे लिया? बराबर. इसका मतलब नाइसा आपने पिछला रिवीजन नहीं किया है. ओमेगा इज इक्वल टू θ/t. मुझे बात बताओ बेटा, जब ये पूरा एक बार घूम जाएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? विल इट बी इक्वल टू 2π 360 डिग्री पूरा एक बार घूम गया तो? हाँ सर. याद है? सो अगर ये पूरा एक बार रोटेट कर गया, सो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 2π व्हिच इज 360 डिग्री. और एक बार पूरा घूमने में इसको टाइम कितना लगेगा? कैपिटल टी के बराबर. सो कैन आई से कि ओमेगा विल बी 2π कैपिटल टी. क्या सर? याद आ रहा है कुछ? हमने डिस्कस किया था इसके बारे में. एंड 1 बाय टाइम पीरियड बिकम फ्रीक्वेंसी, सो दैट विल बी ओमेगा इज इक्वल टू 2π इनटू फ्रीक्वेंसी. दैट कैन बी आल्सो सेड. या ओके. वेदांश, क्लियर है बेटा कैलकुलेशन प्रॉपर्ली? Yes, sir. ओके, ग्रेट. शुभम, ऋषय, इशिता, क्लियर ऑल या थ्री ऑफ सर. यू? Yes. इसको एक और मेथड से करो. ये डाइजेस्ट हो गया सबको? देन आई विल गो विद अ डिफरेंट मेथड. या इसी पे अभी और काम करें? इसी पे और काम करते हैं. देन मैं दूसरा मेथड बाद में बताऊंगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे. सी, पार्टिकल, या वन सेकेंड. ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि यहीं से वेव लिंक करूंगा मैं नेक्स्ट कोर्स में. एसएचएम से ही हम लोग वेव को लिंक करेंगे, इसलिए एसएचएम का ये पूरा कमांड होना जरूरी है, क्योंकि एसएचएम की वो टॉपिक है जो आपके पार्टिकल फिजिक्स को वेव फिजिक्स के साथ लिंक करता है. दिस इज द टॉपिक. अंकिता, क्लियर है बेटा? ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है प्रॉपरली? Yes. कुछ डाउट रहेगा मुझे बोलो अंकिता. ओके, या सर डन. ओके फाइन. चलो विल मूव अहेड. Particle is starting from midpoint. Extreme amplitude A. So particle is starting from midpoint और यहां से स्टार्ट होके पार्टिकल √3a/2 पे जा रहा है. बताइए इसको कितना वक्त लगेगा, जबकि आपको दिया हुआ है कैपिटल T इज टाइम पीरियड ऑफ SHM. से पूछा गया फाइंड टाइम टेकन by particle to move from midpoint to √3a/2. करिए.
करूं मैं? 1 minute. Okay. चलो करके देखते हैं। मैं भी t/6 ही आ रहा है। तो लास्ट प्रॉब्लम में कोई मिस्टेक थी। लास्ट प्रॉब्लम सेम आ रहा है बट नाइसा। सर यहाँ पे हम लोगों ने cos अल्फा 1/2 लिया, फिर अल्फा को π/6 लिया है, अल्फा π/3 होगा ना? So value of alpha should be π/3. And π/3, yes, correct. Did this wrong, so it is π/3, so this will be π/6. क्या कर रहा हूँ मैं? ये π/6 हो जाएगा, so this will be π/12 actually. Correct? We'll go here. So starting from here, we have to go to √3a/2. So right, we have to go here. So इसका मतलब ये मेरा जो डिस्टेंस होगा, this will be √3a/2 a alpha. So in this triangle OAB, in triangle OAB, cos alpha is OB by OA. Is it the cos alpha here? OB by OA. So implies कि cos alpha √3a/2 cos alpha, अभी आराम से लेते हैं। √3/2 का मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री ना? Implies alpha will be equal to what? Will it be equal to π/6? So ये अगर π/6 हो गया, this angle theta कितना हो जाएगा बेटा? ये थीटा π/3, and we can say कि theta is equal to omega into t, and that equal to π/3. So omega को हम क्या लिख सकते हैं? 2π/t into t π/3. So this pi and pi will get cancelled. So t from here will be t/6. अच्छा, इसका t/6 आता है. By mistake we have written that.
Is it clear? Yes. नाइसा आ गया था आंसर बेटा इसका? Have you got the answer? Yeah, sir. Great, very good. ऋषय, इशिता, आंसर आया था सभी का? Yes. वेरी गुड. शुभम, वेदांश, आया था बेटा आपका आंसर इस क्वेश्चन का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट. चलो, अंकिता, have you got the answer बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए इसको मैं दूसरे एक अप्रोच से करके बताता हूँ, फिर इस पे और प्रैक्टिस कराऊंगा. इस पे खूब प्रैक्टिस करेंगे. ये जेई मेंस का कभी बहुत बार पूछा हुआ है. श्योर शॉर्ट सवाल है, अगर इसमें से आएगा तो यही पूछेगा. मैं इसी क्वेश्चन को आई विल डू इट बाय अनदर अप्रोच, द सेम क्वेश्चन. सो इस केस में अगर आप यहां से देखोगे, so this is my midpoint here. ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है ए, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट है ए. पार्टिकल मिड पॉइंट इधर चल रहा है और √3a/2 पे इसको जाना है पॉजिटिव साइड में, राइट. √3a/2 पे इसको जाना है पॉजिटिव साइड में ही. अब अगर आप इसको एनालाइज करोगे, अच्छा इसका टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है टी. सो कैपिटल टी इज व्हाट? दिस कैपिटल टी इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. सेम क्वेश्चन आई एम डूइंग. तो आपसे क्या पूछा गया था? फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल to reach from midpoint to √3a/2. ओके, अब मुझे एक बात बताओ, पहले इसका इनिशियल फेज कितना है? व्हाट इज इस इनिशियल फेज? पहले तो ये बता दो, व्हाट इज द इनिशियल फेज? First quadrant. हाँ, पहले तो आप ये कर दो, sin phi इज इक्वल टू x0/a. x0 इज हियर, तो x0 क्या है इसका? 0 है क्या बेटा x0? क्योंकि मिड पॉइंट से ही तो स्टार्ट हो रहा है. सो x0 0 हो गया, implies sin phi is equal to 0/a which is equal to 0. अब sin phi 0 दो जगह पे हो सकता है, from 0 to 2 pi. एक तो 0 पे होगा, एक पाई पे होगा और एक 2 पाई पे होगा. तीन जगह पे होगा एक्चुअली. कौन सा लेना चाहिए मुझे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि डायरेक्शन आपका, वेलोसिटी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है. सो कैन आई से फ्रॉम हियर कि phi will be equal to 0? शुभम समझ में आ गया व्हाई आई एम सेइंग कि phi मेरा 0 होगा? Yes, sir. ओके, दिस इज गेटिंग द पॉइंट बेटा. व्हाई आई हैव टेकन इनिशियल फेज 0? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में ये तभी होगा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बात करोगे. जस्ट वी आर स्टार्टिंग ना. Yeah, sir, I got it. हाँ, ग्रेट. सो इक्वेशन लिखिए x का. x का इक्वेशन क्या आपको मालूम है बेटा? x इज इक्वल टू a sin omega t plus phi. Now phi already we have calculated is what? 0. So अगर आप यहाँ प्लेस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? Will it be x into sin into omega t? क्योंकि phi तो 0 है ना, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड. सो phi की वैल्यू हमने यहाँ प्लेस कर दिया. सो अब देखिए रिलेशन मुझे मिला, x इज इक्वल टू a sin into what? ओमेगा टी. x का वैल्यू कितना है? कहाँ पे आपको पहुंचना है? t टाइम पे, √3a/2, और यही आपको कैलकुलेट करना है. सो मान लो किसी भी t टाइम पे वी रीच्ड हियर, दैट इज √3a/2 is equal to a sin of omega t. Now this a and a will get cancelled. तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको? √3/2 is equal to sin of omega t. अच्छा, इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में लिखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में? √3/2 First. फर्स्ट, क्योंकि √3a/2 पे आने के बाद भी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? व्हाई आई एम राइटिंग दिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट? सो कैन आई से कि √3/2 क्या हम लिख सकते हैं? sin π/3, क्योंकि sin 60 डिग्री होता है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है. शुभम समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने √3/2 को sin π/3 ही क्यों लिखा है?
क्योंकि वेलोसिटी √3a/2 पे आने के बाद भी पॉजिटिव साइड में ही है, इंप्लाइज कि मुझे इसका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। समझा भाई क्यों लिखा π/3, साइन π/3? Naisa, have you got this? Why I'm writing √3/2 as sin π/3? Why I'm writing this in first quadrant only? ये समझ में आ रहा? Okay, good. Subham, Rishay, and Ankita. Yeah, sir. Okay, Vedans, getting the point, beta? Why I'm writing π/3? Yes, sir. Okay, great. समझ में आ रहा तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, दोनों साइड एंगल्स को इक्वेट कर दो। So equating angles on both side. I'll tell you one magic calculation. मैं शायद हर बैच में बताता हूँ ये। आज के कुछ 2-2.5 साल पहले I used to teach in आकाश. So there एक स्टूडेंट ने ऐसा कैलकुलेशन किया था। See the calculation. Sin square theta. I guess तुम लोग को बताया भी रहेगा। Sin square theta is बताया क्या? Yes sir, उसने हाँ, sin ये बहुत आज तक मुझे भूला नहीं है, इतना चमत्कारी कैलकुलेशन था। सो डोंट डू दिस। ये साइन से साइन को काटना नहीं, वी आर जस्ट कंपेयरिंग द एंगल्स, इक्वेटिंग द एंगल्स, राइट? सो हम एंगल्स यहाँ इक्वेट करेंगे। सो ओमेगा टी विल बी इक्वल टू π/3 बाय इक्वेटिंग द एंगल्स। डोंट कट साइन एंड साइन, ऐसा नहीं होता है कट, वो फंक्शन है, नहीं काट सकते हम। हाँ, कंपेयर जरूर कर सकते हैं। सो इक्वेटिंग भी गलत है, कंपेयरिंग सही है, वर्ड यूज करना। Comparing angles on both sides, so omega t will be π/3. So omega को आप लिख सकते हो 2π/t into t is equal to π/3. So this pi and pi will get cancelled, and therefore t will be equal to t/6. See, am I getting the same answer t/6? Here also the same. है ना? इसमें 2-3 कहानी है। पहले तो आपको इनिशियल फेज निकालना पड़ेगा। इनिशियल फेज निकालने के बाद जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि √3/2 यानी जो भी आएगा उसका वैल्यू मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए कि सेकंड में चाहिए कि थर्ड में चाहिए कि फोर्थ में चाहिए। वो आपको देगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। सिंस यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस नेगेटिव हो जाएगा मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए मैंने √3/2 की जगह पे जो एंगल लिखा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल लिखा है, सेकंड का नहीं लिखा। बराबर? इज इट क्लियर? Is it clear properly? Yes या no? Yes sir. Okay. नाइसा, इसे is it clear बेटा? कैलकुलेशन समझ में आ गया? Yes. Okay. If डन ना, तो फिर मुझे पहला वाला जो क्वेश्चन किया था a/2 वाला वही करके बताइए, बट विद दिस अप्रोच। इनिशियल फेज तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ही रखा है। सो मिड पॉइंट पार्टिकल इधर जा रहा है, a/2 a माइनस a। दिस इज find time taken by particle to move from So will phi be 0? yeah, again it will be 0 क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव में और मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है।
Shall I do this? शुभम करे इसको सॉल्व बेटा. I'm doing last step. Okay, do it. चलो करें सॉल्व. सबसे पहले इनिशियल फेज पे चर्चा करते हैं हम लोग. फर्स्ट टास्क इज टू डू दैट. राइट, x नॉट हियर इज 0 बिकॉज मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है. सो 5 विल बी 0 क्योंकि मिड पॉइंट से पॉजिटिव साइड में चल रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको बात करना पड़ेगा. सो इफ विल बी राइटिंग द इक्वेशन a sin omega t plus phi is 0 here. So x is equal to a sin 0, a sin omega t, right? We have to go to a by 2, right ना बेटा? So आपके पास रिलेशन था x is equal to a sin omega t. मुझे a by 2 पे जाना x की जगह पे. So a by 2 is equal to a sin omega t. Now this a and a will get cancelled. So from here, what we are having, omega t sin omega t will be 1 by 2. Okay, मुझे इसका जो वैल्यू लिखना पड़ेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लिखना पड़ेगा, फर्स्ट में कि सेकंड में? 1 by 2 फर्स्ट, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में. फर्स्ट में लिखोगे, so implies that sin omega t will be equal to what? Sin, will it be equal to pi by 6? Because sin 120 sin 30 degree is equal to 1 by 2 होता, so pi by 6 हो गया. Right? So comparing angles on both sides. So if I will be comparing angles on both sides, so omega t will be equal to what beta? Pi by 6. Omega कितना हो जाएगा? 2 pi by t into t by pi by 6. So this will get cancelled. Is it t by 12? Is it t by 12? Yes, sir. T by 12. That we did with that way method ना, वैसे भी किया था हमने, वैसे भी कर लिया. नाइशा, आया था बेटा आंसर इसका? Yeah, sir. Risha, have you got the answer by this approach? No sir, I didn't get. अच्छा, अभी समझ में आया कैलकुलेशन प्रॉपर्ली? हाँ सर, अभी समझा. गुड. अंकिता, तुम्हें समझा बेटा कैलकुलेशन? हाँ सर. एक और करिए, एक दो और करेंगे. आई नो थोड़ा हेवी हो गया आज, ठीक है, एक और करिए. नाउ इफ इट इज मिड पॉइंट, पार्टिकल मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और a by 2 आने के बाद से ऐसे गया, मतलब मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट पे गया और वापस यहाँ पे आ गया. ध्यान से देखना. So particle is starting from midpoint only, went to extreme point and again came back here. So ये पूरा टाइम आपको बताना है. कैपिटल T दिया है, टाइम पीरियड
ऑफ SHM, फेजर से करो, दोनों मेथड से करो एक्चुअली। आपसे पूछा गया है फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मिड पॉइंट to A/2 for second time. पहली So बार it तो went जाते to A and then again came back to A. या फॉर द सेकंड टाइम, एक बार तो A/2 पे जाते वक्त भी आएगा ना, फिर वापस आते सेकंड टाइम। It started from midpoint, went to A, then again came back to A/2. So you have to calculate the total time. Do it by phasor first and then calculate by the second approach. चलो करें इसको। See, first I'll be doing by using phasor. So पहले तुम लोग फेजर से करते हैं। Went from here to here. पहले सबसे पहले आप इसको फेजर से अप्रोच करोगे। ओके, सो फेजर से अप्रोच करेंगे, मिड पॉइंट से स्टार्ट किया, A/2 पे आ गया। कहाँ पे होगा बेटा? इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की फोर्थ क्वाड्रेंट? A/2 which quadrant it will be? Here ना? राइट, सो एक काम करो, पहले आप ये एंगल अल्फा निकाल दो, दिस इज A/2 हियर, और ये आपका टोटल A हो गया। लेट मी हैव दिस इज A OPQ। सो अगर आप OPQ लेते हो, सो कैन वी से in triangle OPQ cos alpha will be equal to OP by OQ, implies cos alpha A/2 over A, this will get cancelled, so implies कि cos alpha कितना आ गया बेटा? Is it equal to 1/2? और अगर cos alpha 1/2 आ गया, उसका मतलब अल्फा कितना आ जाएगा? Will it be equal to pi/3 cos 60 degree? हाँ या ना? Now if it is pi/3 और ये एंगल आपका pi/2 है, सो ये टोटल जो एंगल मूव करेगा थीटा, कि यहीं से चल रहा है वो, सो थीटा कितना हो जाएगा इस केस में बेटा? सो कैन आई से कि थीटा विल बी इक्वल टू pi/2 प्लस pi/3, और जो थीटा होगा विल इट बी इक्वल टू 5 pi/6? हाँ या ना? So 1, will it be 5 pi/6 बेटा? थीटा रिसे होगा बेटा 5 pi/6? Yes, sir. Okay, now theta is equal to what?
omega into t 5 pi by 6. Omega आपको मालूम है 2 pi by t into t is equal to 5 pi by 6. So this pi and pi will be cancelled. So t will be equal to 5 pi by 12. This will be the final answer. Is it clear? Nice, sir. समझ में आया calculation properly? 5 t by 12. Yeah, sir. Okay. Now I'll do it by the another approach also. Second approach से भी करते हैं. पहले तो मुझे इसका initial phase बता दो. What will be its initial phase? So I know that sine phi is x naught over a, and as this is starting from midpoint, so x naught will be 0 here. So if I'll be plugging the value of x naught to be 0 here, so I'll be getting what? Sine phi is equal to 0 by a. So that implies that sine phi will be 0, and obviously it is moving in the positive direction, so therefore the initial phase will be 0 as well. है ना? Because velocity is positive and it is positive only in the first quadrant. अगर आप first और second में देखोगे, first में हो रहा है. So आपका relation कितना आ जाएगा? X is equal to a sine omega t plus phi. Now phi will be 0. So if I'll be plugging here, x is equal to a sine of omega t. कहाँ पे जा रहा है? a by 2 पे. So a by 2 is equal to a sine of omega t. Now this a and a will get cancelled. So implies what we are having, that sine omega t will be equal to 1 by 2. अभी मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन कौन से क्वाड्रेंट में लिखना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में बराबर, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना पड़ेगा. सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कितना हो गया बेटा? पाई माइनस पाई बाय 6, मतलब 5 पाई बाय 6. हाँ या ना? सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? 5 पाई बाय 6 ना. सो कैन आई से दिस एज साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 6. समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने 5 पाई बाय 6? दिस इज शुभम. Getting both of you how I written 5 pi by 6 here? अंकिता समझ रहा है बेटा मैंने कैसे लिखा 5 pi by 6? नहीं आया समझ में? Sir, could you tell again? How I have written sine 1 by 2 as 5 pi by 6? Is it getting clear? Okay. Sir, no. हाँ बोलो बोलो, नहीं आ रहा है तो बोलो बेटा. ये तो क्लियर है ना कि इसका सॉल्यूशन मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना पड़ेगा. Yes. ये तो क्लियर. ओके. फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आई टोल्ड यू पाई प्लस थीटा होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा होता है. हाउ वी राइट द एंगल्स, राइट? सो sin थीटा 1 by 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा? 1 by 2. विल इट बी इक्वल टू पाई बाय 6, क्योंकि sin 30 डिग्री 1 by 2 होता है, मतलब पाई बाय 6. तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होगा? पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस पाई बाय 6, implies 5 pi by 6. Okay. This is clear बेटा? Angle how I've written? हाँ सर. Okay. Now comparing the angles. On both sides implies omega t will be equal to 5 pi by 6. Omega will be 2 pi t into t over 5 pi by 6. So this pi and pi will get cancelled. So from here t will be equal to 5t by 12. Getting the same answer जो हमारा उधर आया था, क्या उतना ही आंसर आ रहा है? Yes. Okay. नाइस है. कर लिया था बेटा तुमने इस मेथड से? हैव यू डन विद दिस अप्रोच? यस. एक्सीलेंट. समझ में आया बाकी सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू Yes, एवरीवन? sir. ओके ग्रेट. ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट लेक्चर से पहले ऑन द सैटरडे आई हैव अ स्मॉल सजेशन फॉर यू कि प्लीज एक बार इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, वॉच द वीडियो प्रॉपरली,
सब कुछ एक बार दोबारा से करो, जितने क्वेश्चंस लिया मैंने वो खुद से करिए विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन फ्रॉम द वीडियो, राइट। अगर कुछ डाउट आ रहा है मुझे व्हाट्सएप पे पूछो, आई विल रिप्लाई यू। लेकिन अगले लेक्चर से पहले इस सारे कॉन्सेप्ट्स को बेटा एक बार दोबारा जरूर रिवाइज कर लेना, देन विल अगले लेक्चर में हमें मजा आएगा। इज इट क्लियर? Sir, on Sunday there is Raksha Bandhan. So that will be in morning ना, what to do in evening, है ना। ऐसे भी लास्ट वीक वी हैड ऑफ ड्यू टू रिपब्लिक डे, सर इंडिपेंडेंस डे, सो देयरफॉर इस संडे को हम लेक्चर्स करेंगे, राइट। इज इट क्लियर नाइशा? Okay, sir. फाइन, ठीक है बेटा, विल वाइंड अप फॉर टुडे एंड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट डे, बट नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसको रिवाइज कर लेना। ओके एवरीवन, ओके Okay, sir. क्या बोल रहे हो? व्हाट यू आर सेइंग? नथिंग सर। ओके ठीक है, बाय बाय।